Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bless you, Lord. Glorify your name, Lord Jesus of Nazareth. Magnify you, King of glory. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, King of glory. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord, Brother Lalit. Praise the name of the Lord, Devinder Kularji. Hallelujah. Praise the name of the Lord, Angela Droch. Jai Masih ki. Manisha Singhi ji, Jai Masih ki. Hallelujah. We bless you, Lord. Lord, we give you praise, we give you glory, we give you honor, Lord. We exalt you. You are so wonderful, Lord. You are so worthy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You're worthy, Lord. You're worthy. You deserve praise and glory and honor, Lord God. We bless you, we bless you, we bless you, Lord God. We bless your name, we bless your name, we bless your name. Hallelujah. We bless your name, King of glory. We bless you. Bless you, and praise you. Magnify you and glorify you. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Jai Masih ki. Sara. Hallelujah. Jai Masih ki, Angela. Jai Yeshu Masih ki aap sabko. Hallelujah. Let's pray. Father, we come before your throne of grace through the shed blood on the cross of Calvary. Father, we thank you for that glorious blood, the blood that is loaded with light of heaven, blood that is the atonement, blood that is the reconciliation, blood that is shalom, blood, Lord, that pacifies the anger of God, blood that endures the judgment, blood that wipes away the condemnation, blood that cleanses us from all sin and unrighteousness, iniquity and all transgression, blood that sets a soul free, blood that sets our hearts on fire. Hallelujah. We call upon the blood of Yahushua HaMashiach. We call upon that glorious blood. Hallelujah. Father, may the blood protect this telecast. May the blood cover the words that your servant speaks. May the blood open the ears of your people. May the blood cleanse the hearts and sanctify the conscience, that they receive your word, Lord, with great gladness. They receive your word with great gladness, Lord. Hallelujah. Give you praise. Give you praise, give you praise, give you praise, Lord. Give you glory, give you honor, give you praise, give you glory, give you honor, give you praise, give you glory, give you honor, give you praise. Give you glory, give you honor, give you praise, give you glory, give you honor, give you praise, give you glory, give you honor, give you praise, give you glory, give you honor, give you praise, give you glory, give you honor. We glorify you. Lord, we give you praise, we give you honor. Lord, we give you praise, we give you honor. We give you praise, we give you honor, Lord Jesus. We give you praise, we give you honor. We give you praise, we give you honor. We give you praise, Lord. We give you honor, Lord. We give you praise, Lord. We give you honor, Lord. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Father. Father God, that you would speak to our hearts, your revelation. Lord, your word, your living word, Lord. You will pour out in our hearts your living oracles, and you would cleanse and sanctify us in the precious blood of the Lamb in a very, very fresh way, Lord. We bless you, redeeming King, Yahushua HaMashiach. We bless you, our redeeming King, Yahushua HaMashiach, and we give you praise in Yahushua's holy, mighty, and precious name. Amen. हालेलुया हालेलुया। मैं कुछ दिन के लिए ट्रैवल के लिए गया दूर दूर इलाकों में, और
झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बीच में और नेपाली लोगों के बीच में, और आई फॉरगॉट माई सेल फोन, लेकिन द लॉर्ड सेड जस्ट गो विदाउट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एक बहुत अद्भुत संदेश मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, एंड आई expect your undivided attention to the word of the Lord. As you all know that there is a great falling away happening, as it was predicted in the word of the Lord, that there shall come a great apostasy. The Greek word is apostasia, great falling away. Paul talks about in his epistle to Timothy and in his epistle to the Thessalonians, great falling away, जिसको हिंदी में शायद अधर्म कहा गया है, लेकिन इसका असली मतलब है बहुत विश्वव्यापी लेवल पे एक ऐसा आत्मा कलीसिया में आएगा कि लोग विश्वास से गिर जाएंगे, लोग भटक जाएंगे, लोग परमेश्वर में अपनी आस्था खो देंगे, लोग सच्चे कलाम से दूर हो जाएंगे, लोग सच्चे आत्मा से भटक जाएंगे। गलतियों की पत्री में प्रेरित पौलुस 3 बातें कहता है, अनदर जीसस, अनदर गॉस्पल एंड अनदर स्पिरिट। एक अलग यीशु मसीह, दूसरा यीशु, एक दूसरा रूह जो पवित्र आत्मा नहीं है, और एक दूसरा सुसमाचार जो ये सुसमाचार नहीं है परमेश्वर का। एक अलग सुसमाचार, एक अलग आत्मा और एक अलग यीशु मसीह का प्रचार होगा। और मैंने आपको बताया ये जो फॉलिंग अवे है, विश्वास से गिरना है, इसके लिए ग्रीक वर्ड है एपोस्टेसिया, एपोस्टेसिस। एपो का मतलब होता है हटा देना, दूर ले जाना। स्टासिस वो वर्ड है जहाँ से हमारा यूनानी भाषा का शब्द निकला है स्टोरोस। क्रूस को यूनानी भाषा में, सलीब को यूनानी भाषा में कहते हैं स्टोरोस, और स्टोरोस का रूट वर्ड है स्टासिस। एपोस्टासिस का मतलब अंत के दिनों में वो शिक्षा आएगी जो आपको यीशु मसीह के क्रूस से दूर ले जाएगी, जो आपको स्ट्रेट, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:14 में, एंटर थ्रू द स्ट्रेट गेट, तंग फाटक में से प्रवेश करो। वो आपको ब्रॉडवे में लेके जाएगी, नैरो गेट में नहीं लेके जाएगी वो शिक्षा, और वो आपको जीवन के पथ पे नहीं लेके जाएगी, मृत्यु के पथ पे लेके जाएगी। वो फॉल्स टीचिंग, फॉल्स अपोस्टल, फॉल्स पापा डैडी, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स टीचर अंत के दिनों में देंगे। तो ये जो ग्रेट फॉलिंग अवे, मैं इसमें आज संदेश कुछ और आपको देना चाहता हूँ। दिस ग्रेट फॉलिंग अवे दैट Paul talks about in his epistles, that Jesus talked about in Luke 21 and Matthew 24 and Mark 12. Jesus talked about the great deception that shall come and deceive even the elect. यहाँ तक कि चुने हुए धोखा खाएंगे, ऐसा भरमाने वाला रूह आएगा। तो इसका तोड़ क्या है, जिसे हम एंटाइडोट कहते हैं? क्या है इसका एंटाइडोट? इसका एंटाइडोट है स्पिरिट ऑफ द बॉन्ड स्लेव, बॉन्ड सर्वेंट। आज मैं कुछ बहुत गहरी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। इनफैक्ट प्रभु की कृपा से गहरी बातें हर संदेश में होती हैं। पहली जो 5 पुस्तकें हैं जो मूसा ने लिखी हैं वो बहुत यूनिक हैं। हालांकि वचन में लिखा है, पतरस कहता है, होली मैन वर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड एज दे रोट द स्क्रिप्चर्स। पवित्र लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और आत्मा ने उभारा और उन्होंने पुस्तकें लिखी। लेकिन मूसा की पहली 5 पुस्तकें एक्चुअली डाउनलोड की गई। गॉड डाउनलोडेड इनटू मोसेस। दीज फर्स्ट 5 बुक्स कॉल्ड थोरा आर एब्सोल्युटली यूनिक एंड फेनोमेनल। हालेलुया। मूसा ने शायद देखा एंड लिखा है। इसके आगे ऐसे स्क्रीन घूमा, उसने देखा और लिख दिया। हालेलुया। इसमें पहली 5 पुस्तकों का अध्ययन बहुत डीप है, तोरा का बहुत डीप है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आप निकालिए एक्सोडस, जिसे हम निर्गमन कहते हैं हिंदी में, और
खरूज कहते हैं उर्दू में। एक्सोडस चैप्टर नंबर 21, 21 अध्याय एक्सोडस में आइए। क्या आपको मालूम है परमेश्वर के कलाम को कहाँ रखा गया, कहाँ लिखा गया? इट वॉज वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर के रूह ने प्लान किया है कहाँ कौन कौन सी सेगमेंट में क्या क्या वचन लिखा जाए। तो अगर आप पढ़ेंगे 21 चैप्टर ऑफ एक्सोडस, यहाँ पे आपको मिलेंगे लॉज अबाउट स्लेव्स। सुनिए ध्यान से। नाउ दीज आर द रूल्स दैट यू शैल सेट बिफोर देम when you buy a Hebrew slave, he shall serve 6 years, and in the 7th year he shall go out free for nothing. If he comes in single, he shall go out single. If he comes in married, then his wife shall go with him. If the master gives him a wife and he bears him sons or daughters, the wife and the children shall be masters, and he shall go out alone. But if the slave plainly says, I love my master, my wife, my children, I will not go out free, then his master shall bring him to God, hallelujah, bring him to God, and shall bring him to the door of the doorpost, and his master shall bore his ear through and all, and he shall be his slave forever. Hallelujah. बहुत अद्भुत वचन है ये। और आपको मालूम परमेश्वर ने 10 कमेंडमेंट्स दी हैं 20th चैप्टर में। एक्सोडस के 20th चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने दी 10 कमेंडमेंट्स। दीज 10 कमेंडमेंट्स इन हिब्रेइक कल्चर आर कॉल्ड कतूबा। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है ये, मैरिज की शर्तें हैं। जैसे मैरिज होती है ना, क्रिश्चियन मैरिज, तो उसमें भी परमेश्वर का एक दास होता है जो कहता है आप ग्रहण करते हो, फिर वो बहुत सारी बातें बोलता है, डू यू एग्री, लड़की बोलती यस, लड़के को बोलता है डू यू एग्री, लड़का बोलता है यस। तो वो कवनेंट सील किया जाता है परमेश्वर की हजूरी में। इफ़ दे ऑल से यस यस यस, दे एग्री टू द कवनेंट, टू कतूबा, फिर वो मैरिज होती है। अगर वो नो कह दें तो मैरिज रुक जाती है, वहीं पे टूट जाती है। नो कहने की कंडीशन में मैरिज कभी भी नहीं होती। तो यहाँ पे स्लेव के विषय में लिखा है, वो स्वामी की सेवा करता है, और जब वो स्वामी की सेवा करता है ये स्लेव, और 6 साल सेवा करता है, 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स आर ओवर, इन द 7th ईयर वो फ्री है। 7th ईयर में वो फ्री है, वो वापस लौट सकता है। 7th ईयर जो है बहुत अद्भुत है। मैंने आपको बताया कि 10 कमेंडमेंट्स के राइट आफ्टर बॉन्ड स्लेव के नियम परमेश्वर ने दे दिए। पहले 10 कमेंडमेंट दी, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के राइट आफ्टर परमेश्वर ने दिए बॉन्ड स्लेव के नियम। सो व्हाट इज द डीप मिस्ट्री बिहाइंड इट, वी विल एक्सप्लोर दैट। जो 10 कमेंडमेंट्स परमेश्वर ने दी, मैंने आपको बताया सैफायर स्टोन पे थी वो, और मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर में जाता है तो वो एक कीमती पत्थर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं सैफायर। जैसे कार्बन एक इंटेंस हीट में लावा में जाता है तो डायमंड बन जाता है। परमेश्वर की फिंगर, फायरी फिंगर ने जब उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, उन चट्टानों में एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। मैंने आपको बताया था एक साइंटिस्ट, वेन नाम के साइंटिस्ट ने मिडिल ईस्ट की चट्टानों की स्टडी की है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्सट्रीम टेम्परेचर में सफ़ायर बनता है। सफ़ायर एक कीमती स्टोन है। उस पर यहोवा ने अपनी उंगली से 10 कमेंडमेंट्स लिख के दी 2 टैबलेट पे। पहली टैबलेट बताती है परमेश्वर के संग हमारा रिश्ता कैसा हो, दूसरी टैबलेट बताती है कि मनुष्य के संग हमारा रिश्ता कैसा हो। आपको मालूम, जब पुराने समय में कवनेंट बांधा जाता था तो 2 कॉपीज़ बनाई जाती थी एग्रीमेंट की। एक राजा रखता था, किंग, और एक प्रजा, जो उसे सुजरेन वसाल कहते थे उस कवनेंट को। आज मैं कवनेंट की कुछ और बातें आपको बताऊंगा, लेकिन ये कवनेंट और ट्रीटीज़ के ऊपर एक दिन हम फिर स्टडी करेंगे। सुजरेन वसाल क्या होता है? राजा अपनी प्रजा के साथ कवनेंट बांधता है। एक कॉपी किंग के पास रहती है, एक कॉपी प्रजा के पास रहती है। लेकिन हमारे किंग ने ये कॉपीज़ कहाँ दे दी? एक कॉपी जो थी वो बाहर रखी गई थी, एक कॉपी ऐद के संदूक के अंदर रखी गई थी, क्योंकि ऐद का संदूक जो था
वो राजाधिराजा यहोवा का सिंहासन था। हालेलुया। वो राजाधिराजा का सिंहासन। प्रभु यहोवा क्या कहता है सिनई पहाड़ पे इज़राइल को? प्रभु यहोवा कहता है, नाउ सिंस आई सेट यू फ्री फ्रॉम द हाउस ऑफ फेरो, सो आई हैव ब्रॉट यू इनटू माय हाउस। मैंने तुम्हें फिरौन के गुलामी के घर से छुड़ाया और मैं तुम्हें अपने घर में लेकर आया हूँ। आपको मालूम घर का मतलब क्या होता था? जूइश पर्सपेक्टिव में घर का मतलब होता था किंगडम। You been set free from the kingdom of bondage and you are brought into the kingdom of marvelous light, that is my kingdom. Now you are free to walk in my kingdom. मेरे राज्य में आप चले। हालेलुया। लेकिन ये सर्वेंटहुड है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि राइट आफ्टर 10 कमांडमेंट्स अगला नियम 21 चैप्टर में जो परमेश्वर दे रहा है वो है सर्वेंटहुड का। हालेलुया। परमेश्वर की स्लेवरी और दुनिया की स्लेवरी दोनों में बड़ा फ़र्क है। बहुत सारे लोग बाइबल को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वेस्ट के लोग, कि दिस टॉक्स अबाउट स्लेवरी, दिस प्रमोटेड स्लेवरी एंड ऑल दोज स्लेवरी ईरा इन यूरोप and also in the Western countries. They blame to the Bible, but they do not understand. They have no light of the word of the Lord, and their hearts are darkened. So they see on the surface value. What Bible talks about here is very, very unique, very, very profound. आपको मालूम सर्वेंट के लिए हिब्रू में वर्ड जो है वो है H5650. You can study that word. H5650 is the Hebrew word for servant, and this word is obeyed. Obeyed. It means slave, servant, bond servant, man servant. It also means worshipper of God. यहोवा की आराधना करने वालों को ओबेद कहा जाता है। आपने एक नबी का नाम सुना होगा, ओबेदाया। ओबेदाया, ओबेदिया, यहोवा का स्लेव। हालेलुया। परमेश्वर के वर्शिपर्स को कहा जाता है ओबेद, और इज़राइल को ओबेद कहा गया, पूरे इज़राइल को ओबेद कहा गया। आपको मालूम ये कितना प्रोफाउंड वर्ड है ओबेद? ये 3 हिब्रू वर्ड से बनता है। आयन, बेथ, दालेत। आयन का मतलब होता है आँख, बेथ का घर, दालत से बनता है डोर, दरवाजा। तो क्या मतलब है नौकर का? ये सर्वेंट कौन है यहोवा के घर में? ये सर्वेंट है आयन, बेथ, दालेत, ओबेद, जिसका मतलब आँख घर के दरवाजे पे। ये वो नौकर है जो स्वामी के घर के दरवाजे पे अपनी आंखें गाड़ के रखता है। दिस स्लेव looks for the arrival of the master and is instantly keeping an eye on the house of the master. Hallelujah. Obeyed. मैंने आपको एक दिन टीचिंग दी थी, बाइबल शुरू होती है बेथ से, जबकि आलेफ का मतलब है परमेश्वर। हिब्रू का पहला लेटर है आलेफ। But God did not start the Bible with Aleph. Rather, God started the Bible with Beth. The first word in the Bible is Bereshit. If you remember the 7 words, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashemayim, Wa'at, Haaretz. Bereshit, Beth का मतलब घर। God, when he was creating the universe, he was creating house for himself and house for his children. जब परमेश्वर ये सृष्टि को बना रहा था, परमेश्वर अपने लिए और अपनी संतान के लिए, जो उसके स्वरूप में, उसकी इमेज और उसकी लाइकनेस में है, उनके लिए घर बना रहा था। God was creating a house for his children and for himself, and God wanted to come and dwell in this house with his children forever. लेकिन परमेश्वर के घर में क्या हुआ? ईडन में ट्रीजन हुआ। ट्रीजन इज सिन, और सिन का मतलब क्या है? ट्रीजन इज सिन, और सिन इज इक्वल टू डिजायर और डिसाइडिंग टू सर्व अनदर। आदम हवा को परमेश्वर ने एक्सक्यूज मी, थैंक यू जीसस, एडम एंड ईव को परमेश्वर ने अपनी हजूरी दी। गॉड यूज्ड टू कम एंड मीट देम। द मोस्ट प्रेशियस थिंग दे हैड was God himself. You know the greatest gift, वो 9 वरदान नहीं है greatest gift. The greatest gift is the unspeakable gift of glory. That is Jesus of Nazareth, the hope of glory that dwells in you.
इन द मॉर्टल बॉडीज। सबसे बड़ा वरदान यीशु नासरी है, उसको छोड़ दूसरी चीज़ों पे आंखें मत लगाएं। तो एडम और ईव ने क्या किया, उन्होंने कोई और सोर्स ढूंढना चाहा। ईव wanted enlightenment. Nakhash came and told, you will be enlightened. Illuminati यहीं से शुरू हुआ, you will be illumined inside. वो इल्यूमिनेशन के लिए यहोवा के अलावा कोई और सोर्स ढूंढने लगे। तो क्या हुआ, they were expelled from the house. उनको उस घर से निकलना पड़ा, क्योंकि अब वो उस घर में रहने के लायक नहीं रहे। हालेलुया। आप कहेंगे कि मैं तो आज़ाद हूँ मसीह में, आई एम फ्री, बट लेट मी टेल यू, दिस बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट यू हैव बीन बॉट विद अ प्राइस। आप खरीदे गए हो विद अ प्राइस, एंड दैट प्राइस वॉज पुट ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। दैट प्राइस इज सो प्रेशियस। अनमोल है वो कीमत जो आपकी और मेरे लिए दी गई है, और वो प्राइस है मसीह यीशु का पवित्र, अद्भुत, अलौकिक, सुपरनैचुरल जीवन जो आपके और मेरे लिए दिया गया है। परमेश्वर ने उस जीवन को दे दिया जो स्वर्ग की गरिमा था, स्वर्ग की महिमा था, द टोटल सम ऑफ हेवनली ग्लोरी ही पुट ऑन द क्रॉस, ताकि वो आपको और मुझे खरीद ले। हालेलुया। अब हम खरीदे गए हैं ताकि हम परमेश्वर की सेवा करें, और अब हम परमेश्वर के बॉन्ड स्लेव हैं। तो आपको मालूम पहले आप स्लेव बनते हो और आप बॉन्ड स्लेव कब बनते हो। आपको मालूम प्रेरित पौलुस क्या लिखता है। प्रेरित पौलुस न्यू टेस्टामेंट में जब पत्रियां लिखता है, पढ़िए ध्यान से, प्रेरित पौलुस कहता है, पॉल ए बॉन्ड स्लेव ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ग्रीक भाषा में बॉन्ड स्लेव के लिए वर्ड है डूलॉस, DOULOUS, डूलॉस। डूलॉस का मतलब है ओबेद। डूलॉस का मतलब खरीदा हुआ गुलाम। डूलॉस का मतलब है एक ऐसा नौकर जिसने अपना जीवन संपूर्ण रीति से बेच दिया है। एक ऐसा नौकर जिसके जीवन में अब अपना कोई विजन नहीं है। एक ऐसा नौकर जिसके जीवन में अपनी कोई डिज़ायर नहीं है। एक ऐसा नौकर जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना कोई ख्वाब नहीं है, अपनी कोई अभिलाषा नहीं है। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो है अपने स्वामी को खुश करना। आपको मालूम बाइबल में नौकर के लिए और बहुत से शब्द हैं, लेकिन सबसे निचले दर्जे का शब्द है डूलॉस, बॉन्ड स्लेव, जिसे हिब्रू में हम कहेंगे ओबेद, मार्केट से खरीदा हुआ गुलाम। बाइबल में एक शब्द है नौकर के लिए, ओकोनोमिया। प्रेरित पौलुस कहता है हम स्टूअर्ड हैं, अंग्रेजी में भंडारी हैं, परमेश्वर की किंगडम को मैनेज करते हैं, हमारे हाथ में अधिकार दिए गए हैं, हमें प्रिविलेज दी गई हैं। वो वर्ड है इकोनोमिया, जहाँ से अंग्रेजी का शब्द निकलता है इकानमी, लेकिन इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट किया गया स्टूअर्ड। फिर बाइबल में गलेशियंस 3:23 में एक वर्ड है। यहूदी घर में एक नौकर होता था जो मालिक के बच्चों को अच्छी शिक्षा देता था, पोम सिखाता था, स्टोरीज सुनाता था, और मालिक के बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर लेके आता था। उसे कहा जाता था पेडागोगोस। गलेशियंस 3:23 में आपको ये वर्ड मिलेगा, पेडागोगोस। ये वही वर्ड है, ये नौकर जो बच्चों के संग ट्रीट करता है, बच्चों के संग रहता है, यही वो वर्ड है पेडागोगोस। यहाँ से इंग्लिश का वर्ड निकलता है पीडियाट्री। पीडियाट्रिशियन होता है जो बच्चों का डॉक्टर होता है, पीडियाट्रिक वार्ड, बच्चों का वार्ड। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने जब अपने आप को नौकर कहा, आपको मालूम उसने कौन सा शब्द यूज़ किया? इकोनोमिया नहीं किया, एरोस नहीं किया, उसने पेडागोगोस नहीं किया, उसने किया डूलॉस, बंधा हुआ गुलाम, खरीदा हुआ गुलाम। एक ऐसा गुलाम जिसकी अपनी विल नहीं है, अपनी इच्छा नहीं है, अपना कोई ख्वाब नहीं है, अपना कोई विजन, कोई दर्शन नहीं है, उसका अपना कोई एजेंडा नहीं है। उसके जीवन का एक ही एजेंडा है, अपने स्वामी को खुश करना। आपको मालूम इज़राइल में जो ओबेद होते थे या डूलॉस होते थे, वो क्या काम करते थे? उनको सबसे मीनियल काम दिए जाते थे, सबसे निचले काम, टॉयलेट साफ़ करने का काम, सफाई करने का काम। और उनमें से कुछ नौकर होते थे जो पाँव धोते थे,
पैर धोते थे। जब कोई मेहमान आते थे तो वो वार्म लिक्विड से पाँव धोते थे और ऑलिव ऑयल से पाँव को अनॉइंट करते थे। ये वो नौकर होते थे भाई और बहनों जिनके कमर पे एक बड़ा कपड़ा बंधा होता था, टावल, और वो फ्लोइंग टावल होता था। उस टावल से वो पाँव को सुखाते थे। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जब अंतिम रात आई, लूका रचित सुसमाचार पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा जब प्रभु भोज की अंतिम रात आई तो चेले आपस में वाद विवाद करने लगे कि हमारे में से बड़ा कौन होगा, हमारे स्वामी के जाने के बाद लीडर कौन होगा, स्वामी की बड़ी कुर्सी पे कौन बैठेगा। चेले इसलिए लड़ रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे। तो लिखा है यीशु मसीह ने उनको देखा, चेलों को। यीशु मसीह बहुत गमगीन है क्योंकि परमेश्वर का निर्दोष मेमना जो पाप से अज्ञात था वो पाप बनने जा रहा है। परमेश्वर उसे मनुष्य जाति के श्राप दे उसके ऊपर डाल के, पाप उसके ऊपर डाल के क्रूस पे चढ़ाने जा रहा है। लेकिन चेले क्या डिबेट कर रहे हैं कि हमारे में से बड़ा कौन होगा, किसको पोजीशन। दे वर पोजीशन हंगरी, दे वर पावर हंगरी। चर्च के अंदर भी लीडरशिप की यही लड़ाई है। बहुत सारे लोगों को पोजीशन चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, पावर चाहिए। उनका स्वामी क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला है और वो अपने जीवन के आखिरी लम्हे अपने चेलों के संग बिताना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह देखता है चेलों के दिल बहुत गंदे हैं, वो कुर्सी ढूंढ रहे हैं। आज भी यही प्रॉब्लम है लीडरशिप में, पादरियों के अंदर, चर्च के अंदर। पावर, पोजीशन, रिकग्निशन, दिस इज व्हाट पीपल वांट। यीशु मसीह ने क्या किया? जो रब्बी की पोशाक पहनी थी ना उसने, वो बहुत कीमती थी, सीमलेस सिल्क की थी, बहुत एक्सपेंसिव थी। इसीलिए जब उसने अंतिम बार पहनी तो रोमी सिपाहियों ने उसे फाड़ा नहीं, उस पर डाइस फेंक के, क्योंकि वो कीमती थी। उन्होंने सोचा जिसकी डाइस गिरे वो इसे ले जाए। दैट वाज एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। यीशु मसीह ने रब्बी की पोशाक उतार के रख दी और यीशु मसीह ने, आपको मालूम, वो कपड़ा बांधा अपने इर्द गिर्द जो डूलोस का कपड़ा है, बॉन्ड स्लेव का, मंडी से, बाजार से खरीदे नौकर का, एक ऐसा नौकर जो केवल अपने स्वामी को खुश करता है। यीशु मसीह के लिए पौलुस लिखता है फिलिपियों की पत्री में से, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 में चलिए जल्दी से। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय। हालेलुया। फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 और उसके मैं 4th स्क्रिप्चर से आपके लिए पढ़ता हूँ। फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए ध्यान से क्या कहता है प्रभु का वचन। इसके मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 4 से पढ़ता हूँ, सुनिए। पूरा पढ़ देता हूँ शुरू से सुने। सो इफ देयर इज एनी एनकरेजमेंट इन क्राइस्ट, एनी कंफर्ट, फिलिपियों 2 अध्याय के पहले वचन, participation in the spirit, any affection and sympathy, complete my joy of being same mind, having same love, being in full accord and one mind। प्रेरित पौलुस कह रहा है एक मन रहो, एक आत्मा में रहो, दीनता में रहो। Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves। फिलिपियों 2:2 बहुत से मसीह लोग पूरा नहीं करते। फिलिपियों 2:2 में कह रहा है कोई भी काम दिखावे के लिए मत करो, घमंड के लिए मत करो, अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए मत करो, पर दीनता से, हलीमी से दूसरों को अपने से उत्तम समझो। ये समझो कि दूसरे मेरे से बेहतर हैं। कौन ये कमेंडमेंट पूरी करता है बताइए मुझे मसीहत में? फिर लिखा लेट ईच ऑफ यू लुक नॉट ओनली टू योर ओन इंटरेस्ट बट ऑल्सो टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। सभी लोग अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी में, जबकि यहाँ लिखा है अपना इंटरेस्ट नहीं, दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में सोचो। फिर क्या लिखा है? हैव दिस माइंड इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। ये तुम्हारे अंदर आत्मा हो, तुम्हारा माइंड ये हो जो मसीह में था। हु दो ही वॉज इन द फॉर्म ऑफ गॉड did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant।
जो परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा, पर उसने परमेश्वर के अधिकारों को यूज़ नहीं किया और उसने अपने आप को खाली किया और उसने क्या किया, सर्वेंट की फॉर्म में आ गया, नौकर के रूप में आया। आपको मालूम कौन सा नौकर बना खुदावंद यीशु मसीह? खुदावंद यीशु मसीह बना बॉन्ड स्लेव। डूलोस वर्ड है यहाँ पे, देख लीजिएगा ग्रीक लेक्सिकन में, जीसस बिकेम डूलोस, बॉन्ड स्लेव बना यीशु मसीह। और ये जो बॉन्ड स्लेव बनता है ना डूलोस, ये 6 years की अप्रेंटिसशिप के बाद बनता है। यू डोंट बिकम बॉन्ड स्लेव स्ट्रेट अवे, यू सर्व योर मास्टर 6 years, देन मास्टर लेट्स यू गो। 7th year में आपकी आज़ादी है, लेकिन आप मास्टर से कहते हो मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपकी सेवा करूँगा, तो आपके कान में छेद किया जाता है। कान में छेद समझते हैं? आपको अपने स्वामी की आवाज़ सुनाई देती है, क्लियर। यू हियर गॉड, यू हियर द वन हु ओन्स यू, यू बिकम ओबेद, ओबेदिया, यहोवा के ओबेद बनते हो ताकि उसकी आवाज़ सुन सको। 7 नंबर का मतलब होता है परफेक्शन, मैच्योरिटी, कंप्लीशन। आप कवनेंट में चले जाते हो परमेश्वर के साथ। 6 years की सर्विस में कवनेंट में नहीं जाते, 7th की मैच्योरिटी के बाद यू गेट इनटू द कवनेंट। आपको मालूम बाइबल में ब्लड कवनेंट की भी कई टाइप्स हैं, लेकिन आज एक अद्भुत शिक्षा मैं आपको देने जा रहा हूँ। 4 कवनेंट हैं बाइबल में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 4 कवनेंट्स, ये मैं आपको शिक्षा देने जा रहा हूँ और ये आज शाम को भी हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट कवनेंट इज कॉल्ड द ब्लड कवनेंट, पहली वाचा है लहू की वाचा। 4 टाइप्स ऑफ कवनेंट, द फर्स्ट कवनेंट इज द ब्लड कवनेंट। हर कवनेंट जब भी कोई वाचा बांधी जाती है तो एक टेबल सजाया जाता है, उस टेबल के ऊपर प्याले रखे जाते हैं और उन प्यालों में डाल के पिया जाता है ड्रिंक, कवनेंट को एक्टिवेट करने के लिए। रेटिफाई होता है कवनेंट कप के साथ, तो ये ब्लड कवनेंट है। इस ब्लड कवनेंट का एक कप है और उस कप का नाम है सर्वेंटहुड। ये नौकर का प्याला है ब्लड कवनेंट का, और कप होता है, प्याला होता है। जब भी आप प्रभु भोज लेते हो, कप में जाते हो तो बैप्टिज्म होता है, मिकवा होता है। मिकवा पहले होता है, फिर कप आता है, मिकवा को बोलते हैं बैप्टिज्म। ब्लड कवनेंट का कप है सर्वेंटहुड और ब्लड कवनेंट का बैप्टिज्म जो है वो है रिपेंटेंस, तिशुबा। जो तिशुबा का कवनेंट है वो रिपेंटेंस का कवनेंट है। हालेलुया। यीशु मसीह ब्लड कवनेंट में एंटर करता है हमारे साथ। हालेलुया। सेकंड जो कवनेंट है बाइबल में वो है सॉल्ट कवनेंट, सॉल्ट का कवनेंट है। हालेलुया। और सॉल्ट का जो कवनेंट है उसका जो कप है, प्याला है, वो है फ्रेंडशिप का। सेकंड कप, दैट इज कॉल्ड द कप ऑफ द फ्रेंडशिप। और इसका बैप्टिज्म क्या है? इसका बैप्टिज्म है डेडिकेशन। सॉल्ट कवनेंट का कप है फ्रेंडशिप और इसका बैप्टिज्म मिकवा है डेडिकेशन। थर्ड जो कवनेंट है वो, उस कवनेंट में सैंडल यूज किया जाता है, जूता यूज किया जाता है, जूता। और ये जो सेकंड जूते वाला कवनेंट है, इसका जो कप है दैट इज कॉल्ड द कप ऑफ द इनहेरिटेंस, मिरास का प्याला है वो। और इसका जो बैप्टिज्म है वो है मिनिस्ट्री का बैप्टिज्म, सेवा का, मिनिस्ट्री, सेवकाई। फोर्थ जो कवनेंट है, अल्टीमेट कवनेंट है, वो है मैरिज का कवनेंट। और मैरिज के कवनेंट में प्याला भी मैरिज का होता है और बैप्टिज्म भी मैरिज का होता है। ये 4 कप होते हैं पास ओवर से डर के। जब फसा मनाई जाती है तो 4 प्याले पिए जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने थैंक्स गिविंग वाला प्याला पिया उस दिन। ये 4 पास ओवर सिडर के 4 प्याले। आपको मालूम ब्लड कवनेंट उसने इंस्टीट्यूट किया, कहता है ये मेरे लहू में नई वाचा है। खून के अंदर वाचा बांधी यीशु मसीह में। यीशु मसीह ने ब्रिट हा दशा, ब्रिट हा दशा का मतलब नया नियम। इसका असल में मतलब नया नियम ही नहीं है, इसका मतलब है रिन्यूड कवनेंट। और इसकी वाचा प्रभु ने यिर्मयाह नबी की पुस्तक में किससे की थी? इजरायलियों से,
कि मैं एक नई वाचा तुम्हारे साथ बांधूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकालूंगा और तुम्हें मांस का दिल दूंगा, और अपने नियमों को, अपनी विधियों को पत्थर पे नहीं, मैं तुम्हारे दिल की तख्तियों पे लिखूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरी प्रजा। ब्लड कवनेंट, ये यीशु मसीह ने इंस्टीट्यूट किया फसह की अंतिम रात। सॉल्ट कवनेंट में आपको मालूम, प्राचीन समय में सॉल्ट उतना ही कीमती था जितना सोना। सॉल्ट को सोने के संग एक्सचेंज किया जाता था, नमक को। और लोग क्या करते थे जब वाचा बांधते थे, नमक की वाचा, जैसे दो मित्रों ने नमक की वाचा बांधी या चार ने बांधी, चारों के पास चमड़े के बैग होते थे, उसके अंदर नमक डाला जाता था, उसे शेक किया जाता था, और वो नमक एज अ मेमोरियल रखा जाता था। और वो नमक की जो वाचा थी, वो एक दूसरे के मित्र बन जाते थे। तो वो क्या कहते थे कि अब तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। परमेश्वर ने ये वाचा इब्राहिम के साथ बांधी। रेवलेशन जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 में, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में परमेश्वर सॉल्ट कवनेंट करता है इब्राहिम के साथ। परमेश्वर कहता है तेरे शत्रु मेरे शत्रु, तेरे मित्र मेरे मित्र। जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। ये है मित्रता की वाचा, सॉल्ट कवनेंट। यीशु मसीह भी ये वाचा हमारे संग बांधता, मालूम आपको। यीशु मसीह के चेले 3 साल यीशु मसीह की सेवा में लगातार चले रहते हैं। तो एक दिन यीशु मसीह के पास लौट के आते हैं, तो आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। आई कॉल यू नो मोर सर्वेंट्स बट आई कॉल यू नो मोर सर्वेंट्स बट आई कॉल यू फ्रेंड्स। मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। ये सॉल्ट कवनेंट है, नमक की वाचा है। वो हमें मित्र कहता है। क्यों? इसका फ्रेंडशिप का जो कप है, ये इसका जो कप है सॉल्ट कवनेंट का, नमक की वाचा का, वो है फ्रेंडशिप। और इसका बैप्टिज्म क्या है? डेडिकेशन, क्योंकि वो मसीह के लिए डेडिकेटेड थे। डेडिकेशन से परमेश्वर की सेवा करते थे। आपको मालूम, आप अगर प्रभु के लिए डेडिकेट होंगे, ये सॉल्ट कवनेंट में प्रभु के संग जाएंगे, यीशु मसीह के संग, जितना आप डेडिकेट होंगे उतना यीशु मसीह आपके प्रति डेडिकेट होगा। आपकी प्रभु के लिए डेडिकेशन विल बी रेसिप्रोकेटेड। He will reciprocate the dedication. If you are dedicated for him, he said, I am also going to be dedicated to you. Hallelujah. That is called the salt covenant, of which the cup is friendship, और बैप्टिज्म है डेडिकेशन का। तीसरा कवनेंट कौन सा है? तीसरा है सैंडल कवनेंट, जूते की वाचा। मैंने आपको एक दिन संदेश दिया था रूथ और बोआज के ऊपर। बोआज रूस से शादी करना चाहता है, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति महलोन और किलियोन की लिनेज में, नायोमी और एलीमेलेक के ख़ानदान में कोई और व्यक्ति है जो उनके घर की विधवा से शादी कर सकता है, तो पहले उसे रिडीम करना पड़ेगा। और अगर वो रिडीम ना करना चाहे, अर्थात शादी ना करना चाहे, तो वो अपना जूता छोड़ देता है। तो बोआज शादी करना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति जो पहले है बोआज से, वो अपना जूता दे देता है। और आपको मालूम, वो औरत उसके मुंह पे थूकती है। मैंने इस पे आपको टीचिंग दी है, बहुत अद्भुत टीचिंग है 1.5 घंटे की इसके ऊपर। तो ये सैंडल का कवनेंट है, जूते का कवनेंट है, थर्ड कवनेंट। जब जूता एक्सचेंज किया जाता है तो इसका प्याला है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अर्थात मिरास। ये मिरास की वाचा है, इसका कप है मिरास। और इसका जो बैप्टिज्म है वो है मिनिस्ट्री, सेवकाई। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, ये अद्भुत वाचा है तीसरी, शू कवनेंट, जूते की वाचा। इसका कप, प्याला है मिरास का प्याला। आपको मिरास मिलेगी, अंग्रेजी का शब्द है इनहेरिटेंस मिलेगा। और आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री में, सेवकाई में। मैंने अभी बता रहा था कि हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह, उसने देखा उस रात कि चेलों के दिल लिबड़े हुए हैं, गंदे हैं। तो उसने क्या किया? उसने क्या किया स्वामी ने? उस स्वामी ने, हालेलुया, गमछा पहना, रब्बी की पोशाक उतार दी, और क्या पहन लिया? गमछा। डूलस बन गया। और उसके 12 चेले ऐसे रिक्लाइन कर रहे थे, यूं बैठे हुए थे। वो गया और उनके सैंडल उतारने लगा, जूते उतारने लगा। यीशु मसीह
सैंडल के कवनेंट में एंटर हुआ अपने। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उन्हें इनहेरिटेंस देना चाहता है। और इसका बैप्टिज्म है मिनिस्ट्री का बैप्टिज्म। अब चेलों को सेवकाई का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आप देखते होंगे आपके जीवन में कई ऐसे सेवक होंगे जो बहुत शैलो होंगे और आपको देख के लगता होगा ये कोई मिनिस्ट्री वाले नहीं हैं, ये फेक लग रहे हैं, कोई सेवकाई नहीं है इनके पास। आपको मालूम क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उन्होंने सेवकाई का बपतिस्मा ही नहीं लिया है। उनके जीवन पे प्रभु का हाथ नहीं है, उनके जीवन में सेवकाई की बुलाहट नहीं है। आपको मालूम, मिनिस्ट्री इज नॉट ए जॉब, मिनिस्ट्री इज अ कॉलिंग। मिनिस्ट्री इज नॉट ए बिजनेस टू मेक मनी, मिनिस्ट्री इज अ डिवाइन कॉलिंग फ्रॉम हेवन। सेवकाई नौकरी नहीं है जिसमें तनख्वाह मिले। सेवकाई पैसे बनाने का बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है। सेवकाई एक बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट। पंजाबी का बड़ा अच्छा शब्द है बुलाहट का मतलब बुल बोलते लिप्स, लिप्स की आहट। यहोवा के लिप्स की आहट आपने सुनी और आपने अपना जीवन सरेंडर किया और उसकी सेवा के लिए निकल आए। बहुत सारे लोग जो हैं वो सैंडल कवनेंट में नहीं है परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह सैंडल रिमूव करता है चेलों के और झुक के चेलों के पांव धोता है। यीशु मसीह सैंडल कवनेंट में एंटर हो रहा है क्योंकि यीशु मसीह चेलों को इनहेरिटेंस देना चाहता है, मिरास देना चाहता है। और यीशु मसीह चेलों को सेवकाई देना चाहता है, मिनिस्ट्री देना चाहता है, मिनिस्ट्री का बपतिस्मा देके, ताकि मिनिस्ट्री आपके बोन मैरो में हो। मिनिस्ट्री इज नॉट योर लिविंग, मिनिस्ट्री इज योर लाइफ। समझ रहे हैं आप फर्क? कुछ लोगों के लिए मिनिस्ट्री लिविंग है, लिविंग का जरिया है। कुछ लोगों के लिए मिनिस्ट्री लाइफ है। हालेलुया। आपको मालूम प्राचीन समय में क्या किया जाता था? प्राचीन समय में जब लोगों की लैंड होती थी तो लैंड की बाउंड्री कैसे बनाते थे लोग? अपने पुराने जूते को अपनी ज़मीन की हद पे रख देते थे, कवनेंट बांध के, सैंडल कवनेंट। और लोग समझ जाते थे यहाँ तक इस इंसान की ज़मीन है और उसे लैंडमार्क माना जाता था, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर कोई जूता हटाता था तो वो श्रापित गिना जाता था। यू कुडंट चीट, यू कुडंट रिमूव द एंशंट लैंडमार्क। बाइबल में लिखा डू नॉट रिमूव द एंशंट लैंडमार्क्स, इट्स अ कर्स टू रिमूव द एंशंट लैंडमार्क। हालेलुया। यीशु मसीह ब्लड के कवनेंट से फ्रेंडशिप के कवनेंट में लेके जाता है। कहता अब तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, अब मित्र कहूंगा। फ्रेंडशिप से आगे ले जाता है इनहेरिटेंस में। अब मैं तुम्हें मिरास दूंगा, इनहेरिटेंस दूंगा। हालेलुया। ये है मिनिस्ट्री का बैप्टिज्म मिलेगा इसमें। गेट बैप्टाइज्ड इन द मिनिस्ट्री, यू नीड अ बैप्टिज्म ऑफ द मिनिस्ट्री। After the baptism of ministry, God releases you into the inheritance. इसलिए कुछ सेवक आपको मिलेंगे जो बैप्टिज्म लिए हुए हैं मिनिस्ट्री का, who are unleashed into the ministry, जिनको सेवकाई का बपतिस्मा मिला है। हालेलुया। और जिनके संग मिरास है यहोवा की। आप सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज़ मुझे इंडिकेट करें। कैन यू ऑल हियर मी? जय मसीह की। मुझे मैसेज लिखिए अगर आपको सुनाई दे रहा है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आपके लहू की जय। Lord, I pray that these covenants will enter into the hearts of your people, Lord. Lord, the light will be shed in their spirit, in their soul, through the Holy Spirit. अब मैं आपको फोर्थ कवनेंट में लेके जा रहा हूँ। ब्लड कवनेंट से फ्रेंडशिप का कवनेंट, फ्रेंडशिप से इनहेरिटेंस जहाँ आपको मिनिस्ट्री मिलती है, और हाईएस्ट कवनेंट है मैरिज कवनेंट। आपको मालूम ब्लड कवनेंट मैरिज कवनेंट में ही कंज्यूमेट होता है। व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ कम टुगेदर, देयर इज दैट ब्लड एक्सचेंज दैट हैपन्स। तो हाईएस्ट कवनेंट है मैरिज कवनेंट, और इसका चौथा प्याला है। यीशु मसीह ने उस रात तीसरा प्याला पिया।
चौथा छोड़ दिया। आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा पास ओवर सिल्डर के दौरान? उसने कहा, आई विल नॉट ड्रिंक ऑफ दिस कप अगेन अंटिल आई ड्रिंक इट विद यू इन द किंगडम। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जब हवा में कलीसिया मिलेगी दूल्हा के साथ, हालेलुया, हवा में मिलन होगा दूल्हा दूल्हे का, हालेलुया। एक गीत है जो मेरे जहन में गूंज रहा, अभी भी मुझे नहीं आ रहा है, हालेलुया। खैर, तो 7 ईयर्स दूल्हा दुल्हन को कहाँ लेके जाएगा? हेवन में तंबू के नीचे ले जाएगा। इट इज़ कॉल्ड हुपा। उस तंबू में मैरिज होगी और मैरिज का सफ़र चलेगा 7 ईयर्स तक। 7 साल तक मैरिज का सफ़र चलेगा। दुल्हन के संग दूल्हा 7 ईयर्स उस मंडप में रहेगा, हुपा में, हालेलुया। 7 ईयर्स, तब वो कटोरा यीशु मसीह पिएगा हमारे साथ। यीशु मसीह ने कहा, ये 4th मैरिज कवनेंट कप का, मैरिज कवनेंट का प्याला मैं तब तक नहीं पीऊँगा जब तक हम इकट्ठे ना हों। 4th बैप्टिज्म, ये 4th जो बपतिस्मा है, कवनेंट है, मैरिज का है। इसका कप भी मैरिज है और इसका जो बैप्टिज्म है वो भी शादी का बैप्टिज्म है, हालेलुया। तो अपोस्टेट चर्च की मैं बात कर रहा था आपसे। पाप में अकंठ डूबी, मसीह से दूर हुई कलीसिया, उसकी तस्वीर क्या है? लौदीकिया की कलीसिया। मसीह कहाँ है? बाहर खड़ा खटखटा रहा है। अब इसके पीछे क्या सिंबलिज्म है? जब यीशु मसीह कहता है, बिहोल्ड आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक, ये कलीसिया जो है क्या हो गई है? अपोस्टेट है, लेकिन अभी भी दूल्हा खटखटा रहा है। उसने खटखटाना छोड़ा नहीं है। ये उसका खटखटाना आखिरी सिल्वर लाइनिंग है, अंतिम आशा है आपके और मेरे लिए। वो कह रहा है मैं खटखटा रहा हूँ। तो ये एक जूइश कस्टम होता है। दूल्हा क्या करता है? जो एस्पाउस्ड होता है, बिट्रोथल हुआ होता है दुल्हन के साथ, तो वो अपने पिता के संग आता है। दूल्हा, दूल्हे का पिता और दूल्हा दोनों आते हैं और वो डोर पे खटखटाते हैं और डोर खुलता है और दुल्हन अंदर से देखती है और वो पूछता है दूल्हे का पिता, आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? तो जब वो बोलती मैं तैयार हूं, तो दूल्हा और दूल्हे का पिता दोनों अंदर जाते हैं, हालेलुया। और बिट्रोथल प्रोसेस कंज्यूमेट होता है, हालेलुया। तो वो खड़ा है द्वार पे और वो खटखटा रहा है, हालेलुया। और वो कह रहा है, खोल अंदर से द्वार, तो मैं अंदर आऊंगा। आपको मालूम, आपने कई जगह देखा होगा कि एक बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग है, ऐसे जीसस खड़े खटखटा रहे हैं। आपको मालूम ये एक रियल पेंटिंग है जो शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 18th सेंचुरी में होलमन हंट नाम के एक पेंटर ने बनाई और उसने ये इंग्लैंड के राजा को प्रेजेंट की और इस पेंटिंग को एक जगह पे लगाया गया और होलमन हंट ने नीचे लिखवाया कि अगर किसी को इस पेंटिंग में कोई गलती मिले तो प्लीज़ मार्क करें। तो इतनी ब्रेथ टेकिंग पेंटिंग थी ये, शायद 60 फीट बाय 40 फीट की थी, एग्जैक्ट मुझे इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, आप इसकी गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यह पेंटिंग इंग्लैंड के राजा को दी गई, एक चौराहे में लगाई गई और एक और पेंटर ने देखी, उसने एक बारीक सी गलती ढूंढ ली और जब गलती ढूंढी गई तो राजा ने उस ओरिजिनल पेंटर को, और ये भी एक बहुत बड़ा पेंटर था जिसने गलती ढूंढी, दोनों की भेंट करवाई गई। तो उस व्यक्ति ने, होलमन हंट, ये जो व्यक्ति जिसने पेंटिंग की थी ये विश्वासी था, उसकी और उसकी मुलाकात हुई। तो उस पेंटर ने इस पेंटर को क्या कहा? उसने कहा ये नायाब पेंटिंग है जो आपने बनाई है, ब्रेथ टेकिंग, फ्लॉलेस, इट लुक्स लाइक जीसस इज रियली स्टैंडिंग एंड द डोर इज रियल एंड द डोर इज गोइंग टू गेट ओपन। बिल्कुल सब कुछ रियल लग रहा है, लेकिन एक कमी है, आपने इस दरवाजे के बाहर हैंडल नहीं बनाया। आपको मालूम होलमन हंट ने क्या जवाब दिया? होलमन हंट ने कहा, भाई ये कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये वो दरवाज़ा है जिसका हैंडल अंदर से खुलता है, ये दरवाज़ा आपके दिल का है जिसे आपने अंदर से खोलना है। अपोस्टेट चर्च का एंटीडोट है बॉन्ड स्लेव, हालेलुया। शाम को फिर इसके ऊपर, इसके सेकंड सेशन में हम अध्ययन करेंगे। आप फिर जुड़िएगा मेरे साथ।
5:30 to 6 के बीच में we'll come back and we'll study more. The Lord bless you. Please continue to dig the word deeper. इस पे और अध्ययन करें, 4 covenants के ऊपर और टीचिंग करेंगे. Dig deeper into the word of God. परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे. सबको जय यीशु मसीह की.